करते हैं आगे। So in yesterday class, I discussed one problem where I have explained the method, the simplex method, how to apply simplex method, how to solve the problem. बताइए उसमें कुछ प्रॉब्लम है? That is clear? क्यों स्टूडेंट्स, कुछ है उसमें, कुछ डाउट देखा था कुछ नहीं? चलिए एक और प्रॉब्लम लेता हूँ मैं. आई विल एक्सप्लेन वन मोर प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 412, पेज 103. That is minimization problem I am considering now. Minimize of z is equal to x1 minus 3x2 plus 2x3. Okay. And subject to the constants 3x1 minus x2 plus 2x3 is less than or equal to 7, minus 2x1 plus 4x2 less than or equal to 12, minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 less than or equal to 10. And these are the constants. Non-negative constant. So here this is a minimization problem, and all the constants are less than or equal to type. So the first step of simplex algorithm was, I will convert it into क्या करें भाई, पहले मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में कन्वर्ट, है ना? तो आई कैन राइट मैक्सिमाइज ऑफ z स्टार, सपोज न्यू एडजेक्टिव फंक्शन z स्टार लिख दे रहे हैं. तो व्हाट आई विल टेक माइनस साइन ऑफ दिस, माइनस x1 plus 3x2 minus 2x3, and the whatever the final answer will come, there again I will multiply by minus, that will give you the minimum, है ना? अभी जो आंसर आएगा सॉल्व होके द ऑप्टिमल वैल्यू, there I will multiply by minus sign, so it will give you the minimum problem of minimum value of the z. Now because all are less than equal to, so I have to use 3 select variables, है ना? All are less than equal to, so you have 3x1 minus x2 plus 2x3. So suppose first I am taking y4 ले ले, s1 s2 ले ले. आपके बुक में y4 से लिया, कहीं पे s1 से लिख देते हैं select variables s1 s2 s3. ये क्यों? I am taking y4. Y means it is just a select variable. This equal to 7. So अगर y4 है तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 0, y4 है ना, cost value will be 0. Similarly, minus 2x1 plus 4x2 plus y5 is equal to 12, and its cost value also 0 in the objective function. And the last, minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 plus y6 is equal to 10, and its coefficient also 0 into y6. Okay, so this is the new problem in standard form. All the inequalities has been converted to equalities, and minimization problem converted to maximization, and all these are non-negative, of course, greater than or equal to 0. Okay, so now I will start. I will consider that your initial basic physics solution has start हो चुका है हमारा, that is the your first step. Now I am considering that IBFS exist. So in matrix form, if you will have matrix form, तो यहाँ पर आपका matrix जो है ये A, किसी हम सब matrix B बनाएंगे, that should be identity matrix. So your matrix will be what? 3 minus 1 2 1 0 0. Here n is how much? N is number of unknowns, 6 होगा, है ना? And m is 3.
एंड -2 4 0, ये भी 0 है, y5 is 1 0 एंड -4 3 8 0 0 1। इसे अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो ए एक्स, ये आपका x होता है, x1 x2 x3 एंड y4 y5 y6। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं आप, ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी भी कॉलम में होगा 7 12 10। यू कैन सी हियर this is your 3 into 6, 3 rows 6 columns, there are 6 rows 1 column, so 3 into 6 into 6 into 1 will be how much? 3 into 1. So B sub matrix you can consider here. You can see n is how much? N is 6, m is 3. So which B I will consider here? M cross M order की 3 non basic variables, which is identity, है ना? हमें नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से लेने होंगे? जिसे 0 पुट करेंगे x1 x2 x3 को, because these will give you identity matrix. Initial basic feasible solution में that is your identity matrix. So I will consider initially x1 x2 x3 is equal to 0, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हमें कोई सब मैट्रिक्स लेनी है 3 by 3 की. So y4 will be how much? 7, है ना? जब इसे हमने 0 पुट कर दिया डायरेक्ट, y5 is 12 एंड y6 is 10, क्योंकि b हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे, वही ये वाली सब मैट्रिक्स जो आपका इन 3 वैल्यूज के अकॉर्डिंग. सो ये y4 आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ आई विल कंस्ट्रक्ट माय टेबल. स्टार्ट विद दिस इनिशियल सॉल्यूशन. ये आपके 3 बेसिक वेरिएबल्स हैं. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट अ टेबल. ये क्लियर है यहाँ तक स्टेप भाई? बताइए स्टूडेंट्स. क्यों भाई? मोहम्मद नदीम, अनीस, हदीब, कोई भी क्लास पे तो हो रही? यस सर. हाँ भाई नुमान खान, यस सर. ठीक है. ये यहाँ तक हमने स्टार्ट करा है. जी सर. ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है जो यहाँ तक हमने किया है. नेक्स्ट स्टेप इज कंस्ट्रक्टिंग टेबल. टेबल में हम इटरेशन करेंगे. चलो टेबल बना लेते हैं. इस टेबल में आपके 3 इटरेशंस आएंगी. टेबल में यहाँ तक क्या होगा, इसमें है y6 है, मिनिमम रेशियो है. चलो तो इतना ले लेते हैं इससे ना. ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ दिया क्योंकि ऊपर हमें सीजे की वैल्यू लिखनी है. यू नो, इसे लेके चलेंगे नीचे तक. टेबल कल आपको बताई थी, याद हो गई होगी तो अच्छी बात है, वरना दोबारा देख लीजिए क्या होगा. तो जा रहा है बेसिकली नेटवर्क नहीं आ रहा सर, बाहर सही आ रहा है सर. हैं? अंदर सर नेटवर्क नहीं आया था, बाहर जाके सर चेक करा था. कौन कौन बोल रहा है? नदीम. अच्छा चलो बस ठीक है, म्यूट कर लो. बाहर बैठे रहो बस. ठंड तो नहीं है बाहर? सर है हल्की सी, अब धूप निकली है. बस तो बाहर बैठ जाओ बस. सर पे कैप लगा के, कैप लगा के सर पे बैठ जाओ. ठीक, माइक म्यूट. गुड. सो नाउ आई विल दिस इज द टेबल व्हिच यू नीड टू कंस्ट्रक्ट. भाई इतनी वैल्यूज होती हैं, यू नो. नाउ आई विल राइट द वैल्यूज. तो हियर नाउ स्टार्ट. बताओ क्या क्या आएगा भाई, किसे याद है? यहाँ पे क्या होता है? सीबी बेसिक वेरिएबल्स वाई बी से नोट करते हैं. चाहे तो आप बेसिक वेरिएबल्स बाई बी लिख दे या बी बी कुछ भी लिख सकते हैं. हमें मेनली इंटरेस्ट है वैल्यूज पे, ई एक्स बी. तो सी वाई बी का मतलब है बेसिक वेरिएबल्स. बेसिक वेरिएबल्स हमने क्या लिए? एज आई टोल्ड यू, इनिशियली वी टेक सिलेक्ट वेरिएबल्स एज अ बेसिक वेरिएबल्स. y4 y5 y6, y4 y5 y6.
ठीक है। एक्स बी का मतलब इनकी वैल्यूज, तो इनकी वैल्यूज शुरू में क्या होती है, जो राइट हैंड साइड था 7 12 10, यही वैल्यूज है इसकी। तो 7 12 एंड 10। ठीक, जो लोग कल नहीं थे वो ध्यान से देखें इसे, मेथड सी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। नाउ ऑन द टॉप आई विल राइट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट सीजे, इनकी कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉस्ट क्या है, वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर लिखेंगे सारे वेरिएबल्स। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 6, x1 x2 x3 y4 y5 एंड y6। ये आपके पास 6 वेरिएबल्स है। एंड हेयर यू हैव मिनिमम रेशियो, यहाँ मिनिमम रेशियो निकालेंगे और एक्सटेंड कर दो। Cj इज द कॉस्ट वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कॉस्ट वैल्यू क्या है, -1, ये वाले लिखेंगे जो न्यू बनाया, -1 3 -2 0 0 0, -1 एंड दिस इज 3 +3 है, एंड -2 0 0 0 एंड द वैल्यू। इसकी जो वैल्यू थी, ये पूरी मैट्रिक्स यानी ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी 3 -1 2 से उठा दो, 3 -1 2 1 0 0 -2 4 0 0 1 0 एंड -4 3 8 0 0 1। ठीक, ये आ गया आपके पास 6 वैल्यूज। सी भी इनके वैल्यूज, y4 y5 y6 की वैल्यू क्या है, 0 0 0, इन्हीं की कॉस्ट वैल्यू सिर्फ जो आपके बेसिस के अंदर आ रहा है, बेसिक वेरिएबल्स। चलो, ये आपके एक टेबल कंस्ट्रक्ट हुई। अब फर्स्ट आइटरेशन आई विल फाइंड डेल्टा जे। डेल्टा जे क्या था भाई, जेड जे माइनस सी जे। जेड जे क्या तो बताया था, सी बी वाई जे माइनस सी जे। अब डेल्टा जे का मतलब ये डेल्टा 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा 1 कोई बता सकता है कितना आएगा डायरेक्ट, नहीं पता, -1। माइनस तो ऑलरेडी है ऊपर, जो सीजे होता है उसका नेगेटिव आता है, यस 1 सर, आएगा 1 आएगा। यहाँ, -3 -3 यहाँ 2। 2 ये बेसिक वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग क्या बताया था मैंने, बेसिक वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा, 0, 0। है ना। इसे आप कैलकुलेट देखो, एक बार बता दे रहा हूँ फिर से कैसे निकाला हमने ये, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, बाद में रेस कर देंगे। डेल्टा 1 विल बी व्हाट, सी बी, ये फॉर्मूला है, तो जब जे की जगह 1 रखा तो सी बी y1 माइनस C1। y1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम ये, तो सी बी की वैल्यू व्हाट इज सी बी, सी बी है 0 0 0, इसे रो में लिखेंगे। y1 मीन्स ये y1 कॉलम फर्स्ट कॉलम, 3 -2 -4 माइनस C1 कितना था, -1। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखिए 0 × 0 0 × 0, एक स्केलर आएगा 0 +1, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से डेल्टा 2 एंड सो ऑन। ओके, इन दिस वे यू कैन गेट द वैल्यूज। यस्टरडे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो इसलिए मैंने इसे एक बार रिकॉल कर दिया, अदरवाइज आप लेक्चर में देख सकते हैं वेयर आई हैव एक्सप्लेन सिंपलेक्स एल्गोरिथम। चलो, अब यू आर गेटिंग निगेटिव, अगर यहाँ सब पॉजिटिव हो जाते तो यही आपका आंसर आ जाता, बट हेयर यू आर गेटिंग निगेटिव term, delta j is negative here, this is -3, so because delta j is less than 0 here, you know, since delta j is less than 0, so it means we will proceed further, हमें आगे proceed करना पड़ेगा, we will proceed further। और proceed कैसे करेंगे कि जो मोस्ट नेगेटिव होगा, यहाँ पर तो एक ही यही है नेगेटिव, तो ये मोस्ट नेगेटिव है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास कॉलम है ना, दैट विल बी योर न्यू बेसिक वेरिएबल। तो ये x2 है, तो x2 विल बी न्यू बेसिक वेरिएबल, मींस x2 विल एंटर इन yb आपके क्या है, बेसिक वेरिएबल्स है, x2 विल एंटर हेयर। तो ये एरो का मतलब हो गया कि हेयर
दिस इज एंटरिंग, तो x2 एंटर्स, यहाँ लिख सकते हैं आप x2 एंटर्स। अब जब x2 एंटर करेगा तो किसी की एक की जगह पर आएगा, क्योंकि वेरिएबल्स तो 3 ही रखते हैं यहाँ पे बेसिक आपके पास। तो कौन सा लीव होगा उसके लिए आई विल फाइंड मिनिमम रेशियो, है ना। तो मिनिमम रेशियो में क्या होता है, आई टोल्ड यू कि ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर कोई टर्म निगेटिव है उसको हम रेशियो में काउंट नहीं करेंगे। अगर तीनों ही निगेटिव होते तो ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन में जाता। हियर योर फर्स्ट इज निगेटिव, यहाँ पे 7/-1 नहीं निकालूंगा, इसको हम ऐसे एम्प्टी छोड़ देंगे, वी कैन नॉट कंसीडर 7/-1। मिनिमम रेशियो क्या होता है, XB/X, ये जो J आता है, जैसे यहाँ पर इस केस में XB/X2 है, यहाँ पर here it is XB/X2। 7/-1 है तो आई विल नॉट कंसीडर। सेकेंड इज 12/4, it is equal to 3 पॉजिटिव था, and 10/3 which is approximately 3.33। so it is the minimum, 3 is minimum, so this is minimum means y5 will be leaving, this implies that y5 leaves, तो y5 लीव करेगा और x2 एंटर करेगा। तो इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है 4 is the common element, that is called pivot element, it is your pivot element। इसको क्या होना चाहिए, इसको मैंने मार्क कर दिया 4, क्योंकि हमें अगली टेबल बनानी है अब, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 4 इज द पाइवट एलिमेंट। ये पाइवट एलिमेंट क्या होता है, इट मस्ट बी, क्यों भाई, यूनिटी। यूनिटी है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि जब ये x2 एंटर हो रहा है तो इसका जो ये है ये 1 होना चाहिए और ऊपर नीचे 0, क्योंकि जो भी बेसिक वेरिएबल्स है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, तो इट मस्ट बी यूनिटी। तो जब हम न्यू एंट्री अब लिखेंगे, तो न्यू एंट्री लिखने जा रहा हूँ मैं सबसे पहले। तो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल टेक न्यू टेबल, इसके सेकंड आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन इज डन, चलो सेकंड आइट्रेशन कर दो, ठीक है, इसे रेज कर दो। तो सेकंड आइट्रेशन में न्यू वाई CB YB, तो पहले मैं YB लिखूंगा, तो YB आपका Y4 तो वही एज इट इज, बस Y5 रिप्लेसेस विद X2, तो यहाँ पर X2 एंड Y6 एज इट इज, एक एक करके वेरिएबल चेंज होता है। नाउ Y4 की कॉस्ट वैल्यू इज 0, CB X2 की हाउ मच +3 and Y6 is again 0। Now I will firstly write this new row X2। तो क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, बिकॉज दिस पाइवट एलिमेंट इट मस्ट बी यूनिटी, बिकॉज इट इज 4 आई विल डिवाइड बाय 4 इन द होल रो, इस पूरी रो को हम 4 से डिवाइड करेंगे जो न्यू एंट्री आपके एंटर होगी। तो 12/4 इज 3, -2/4 -1/2, 4/4 is 1, 0/4 is 0, 0/4 0, 1/4 and 0/4 0। ठीक है, ये आपने पहले फर्स्टली यू विल राइट दिस न्यू रो। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, 1 के करस्पॉन्डिंग बाकी कॉलम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0, है ना, क्योंकि इट मस्ट बी अ कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपके पास R1, जैसे मैं R1 लिखना है, R1 में है -1, तो 0 कब बनेगा, ये सपोज इट इज योर न्यू रो, इसको मैं R2 स्टार कह देता हूँ, ये न्यू रो आ गई है। तो हाउ इट विल बिकम, व्हाट आई विल डू, क्या कैलकुलेशन करनी है, ऐड कर ऐड दे। कर देंगे सर। तो यस सर। हाँ R1 में चेंज होगा, R1 में आई विल बी एडिंग R2 स्टार, है ना, यहाँ से मैं ऑपरेशन लिख दे रहा हूँ, R1 में R1 + R2 स्टार, यानी कि -1 + 1, तो ये 0 बन जाएगा। अब ध्यान रखना इस इनको मत ऐड कर देना, इस रो का इसके साथ ऑपरेशन होगा, ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन। 7 + 3 10, 3 - ½ हाउ मच 5/2, है ना, -1 + 1 0 हो गया, 2 + 0 इट इज 2, 1 + 0 इट इज 1, 0 + 1/4 1/4, 0 + 0 0। ठीक है यार, सिमिलरली थर्ड, दिस शुड बी 0, क्या करें R3 में बताइए, इन R3 -3 3R2 स्टार, R2। हाँ स्टार
लगाना जरूरी है, ध्यान रखना कि न्यू रो हम शो कर रहे हैं। ये आपके पास R1 R2 R3 थी, ये ओल्ड रोज थी सपोज, और ये न्यू रोज आ रही हैं। R1 स्टार चाहे तो लिख दो इसको R1 स्टार, R2 स्टार, R3 स्टार, हमें तो इसे 2 स्टार की जरूरत पड़ रही है। नाउ R3 माइनस 3 R2, इससे क्या होगा, ये चीज जीरो हो जाएगी, लेकिन बाकी एंटी भी जीरो चेंज होंगी। क्या करना है देखिए, 10 माइनस 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स किया तो 10 माइनस 9 1 माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो क्या है ये -4 माइनस माइनस प्लस 3/2, हाउ मच, 2 4 द 8 -5/2, okay. Similarly it will be 8, it will be 0, it will be -3/4 and it will be 1, ये आ जाएगा। Now again I will see that what is my delta, अगर डेल्टा आपके पास आ गया तो फिर ठीक है, अगर if all delta पॉजिटिव, बस इतना कैलकुलेशन हो गई आपकी। Now next step it I will check what is your delta, ठीक है। सो डेल्टा जे वही ZJ माइनस CJ। कोई बताओ डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता व्हाट इज डेल्टा 1? 0 इंटू 0 माइनस 3/2 0 है, बताइए। नहीं, अब यहाँ पे वो फर्स्ट टेबल में होता था, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 3 आ गया ना ये, यहाँ अगर ये 0 होता तो आपके पास सही थी, अब ये 3 है, क्या होगा 0 इंटू 5/2। अब ये जो आपके पास डेल्टा 1 होगा इस न्यू टेबल में, इट इज 0 3 0 5/2 -1/2 -5/2 माइनस 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 हाफ, है -1/2, यस। माइनस हाफ, देख लीजिए 0 इंटू दिस 3 इंटू दिस तो कितना हो जाएगा -3/2 + 1, गुड। सिमिलरली डेल्टा 2 तो 0 3 बनता 3 3 - 3 0, ये 0 आ जाएगा, वैसे भी ये 0 ही आना, देखो जो बेसिक वेरिएबल उनके करस्पॉन्डिंग 0 आता है, तो x2 0 आएगा, y4 विल बी 0 एंड y6 विल बी 0। इसे चेक करेंगे, y3 कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इट विल बी कमिंग 2 एंड इट विल बी कमिंग 3/4, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर एक माइनस आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आपको एक स्टेप और जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी एक माइनस है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो यहीं ऑप्टिमम मिल जाता, स्टिल यू हैव 1 माइनस डेल्टा जे लेस देन 0 फॉर दिस, तो इट मीन एंट्री इज द ओनली, तो इट मीन्स दिस विल बी नाउ न्यू एंटरिंग वेरिएबल, कौन सा x1, तो x1 विल एंटर, सो x1 एंटर्स। लीविंग के लिए फिर मुझे मिनिमम रेशियो निकालना है, किसका, अब xb अपॉन x1 है आपकी बात, तो 10, अब ये पॉजिटिव है तो 10/5/2, 5/2 कितना हो गया, ये 20/5 4 हो गया। सेकंड रेशियो क्या होगा बताइए जरा, सेकंड को सर ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे ही वी कैन नॉट कैलकुलेट बिकॉज माइनस साइन देयर, हियर माइनस साइन देयर, वी कैन कैलकुलेट। अगर ये भी माइनस होता तो क्या होता देखो फिर, तो आप इसको भी ऐसे छोड़ते, यानी कि यू विल नॉट गेटिंग एनी लीविंग वेरिएबल, तो उस केस में क्या होता है, ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन जो आपको बता रहा था। अगर तीनों नेगेटिव हो जाते तो हम यही लिख देते कि वी कैन नॉट फाइंड विच वेरिएबल विल लीव द बेसिस, सो इट हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन आपको एक मिल गया, ये मिनिमम हो गया, सो दिस विल बी द मिनिमम बिकॉज इट इज द ओनली, सो इट मीन्स y4 लीव्स, ठीक है। अब y4 लीव्स करेगा तो यू गॉट द कॉमन एलिमेंट इज द पाइवट एलिमेंट, दिस इज द पाइवट एलिमेंट 5/2, it is your pivot element, it must be unity, तो क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 5/2, इस रो में हमें डिवाइड करना है 5/2 से, या ये कह दो कि मल्टीप्लाई कर दे 2/5 से, एक ही बात है ना। R1 स्टार में मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो पहले मैं इसी को लिखूंगा, बस ये लास्ट टेबल है आपकी, इसमें आंसर आ जाएगा। सो चलो न्यू एक बार वन मोर टाइम, ओके, इन सबको हटा दो, लाइन
चलिए सो न्यू, सबसे पहले वेरिएबल लिखने हैं, तो y4 की जगह पर यू गॉट न्यू x1, सो x1 x2 y6 x x1 की वैल्यू थी -1, x2 cb इज 3, दिस इज 0। अब ये रो पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2/5, तो 2/5 इट विल बिकम 4, this will be 1, 0, 2 into 2/5 is 4/5, 1 into 2/5, 2/5, 1/4 into 2/5 is 1/10 and 0. Now again I will repeat the process. अब यहाँ पे माइनस हाफ है ना, तो सपोज ये आपके पास न्यू रो जो है, इसको मैं R1 डबल स्टार कह देता हूँ, R1 डबल स्टार। What I have to do, this should be 0, यहाँ माइनस हाफ है, तो what I will do in R2 स्टार I will take, क्या करे भाई बताओ जरा, माइनस हाफ को 0 करना है तो R2 plus half R. R2 R1 double स्टार star. प्लस हाफ R1 डबल स्टार है, ये करना पड़ेगा। Yes sir. इसमें इसका डबल हाफ टाइम्स ऐड कर देंगे R1 का, जब हाफ ऐड करोगे तो ये टर्म 0 आ जाएगा, है ना। किसका, R1 में हाफ टाइम है, R1 का हाफ, 10 का हाफ किया आपने 5, और इसमें ऐड करना है किसमें, R2 में, तो R1 स्टार इज, नहीं 2 हुआ ये, और इसमें ऐड किया तो 3 + 2 5, है ना। R2 स्टार में चेंज करना है, तो R2 स्टार प्लस हाफ, दिस प्लस हाफ दिस 0। अब ये 1 प्लस हाफ ऑफ दिस, ये तो 0 ही था, तो ये 1 रहेगा। इसी तरीके से यू कैन राइट रेस्ट ऑफ द एंट्रीज, 2/5, 1/5, 3/10, 0। कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना इस बारी कैलकुलेशन बस। Similarly here -5/2 है, so what I will do, I will take the operation in R3 star, what R3 star, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी, तो प्लस 5/2 R1 डबल स्टार, ठीक है। ये 2 दिख नहीं पा रहा है यहाँ, जगह नहीं शायद, चलो इसका 5/2 ऐड करेंगे, तो 5/2 गया इसका, और इसमें ऐड किया R3 में, तो 5/2 किया R1 का आपने, 4 into 5/2 एंड देन दिस, तो इट विल बिकम कितना होगा, देखो ये 11 हो जाएगा ना, इसका 5/2 कितना होगा, 10, 4 into 5/2 10 plus 11. 11 हो सही गया, है. सही है। 0 0, ये बाकी एंट्रीज आप चेक कर लेंगे, आ जाएगी। कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, लेकिन ध्यान से करने वाली है बस। नाउ यू गॉट ऑल दीज थिंग। अब अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास फाइनल डेल्टा जे सारे पॉजिटिव आएंगे, यहाँ चेक कर सकते हैं बस, यही आपका लास्ट आइटरेशन हो जाएगा। तो नाउ आई विल चेक डेल्टा जे, तो डेल्टा जे देखिए x1 x2 3 तो 0 आ जाएंगे, करस्पॉन्डिंग टू बेसिक वेरिएबल डेल्टा जे 0, और y6 भी 0 होगा। इसे आप चेक करेंगे तो देखिए कितना आएगा, -4/5 + 6, देखो यहाँ लिख सकते हो, -4/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, प्लस 6/5 माइनस सी जो होता है ना -3, -3 कितना आ रहा है, ये 12/5 है क्या, है ना। कितना हो गया, 6 - 4 2/5, 2/5 -3 कितना हो गया, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक, और पॉजिटिव आ रहा है नहीं, 2/5 -3 -15 माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए था। यहाँ पे क्या था, ये +3 था, -4/5 एंड 3 into 2/5, 3, नहीं ये कितना है, 1 मिनट, अच्छा ये थर्ड वाला है आपका, सॉरी ये कितना है, -2 है, सॉरी ये -2 का मतलब +2, 3 नहीं है, थर्ड रो है ना। अब देखिए, वही सर +2 है. यस सर, हाँ ये 12/5 ही होगा। ठीक है, हाँ, वो मुझे दिख नहीं रहा था उसमें, वो बन के आ गया था व्हाइट बोर्ड। 12/5 1/5 आएगा ये, और लास्ट वन विल बी 4/5, है ना, आप चेक कर सकते हो। सो नाउ ऑल डेल जे पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, तो इन द नेक्स्ट ये टेबल कंप्लीट हो गई आपकी। नाउ सिंस ऑल डेल्टा जे पॉजिटिव, वी गेट एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्या है, अब वैल्यूज रखेंगे, देखिए
तो वैल्यू जो आएंगी x1 की वैल्यू ये है 4, x2 की है 5। तो क्या आ गई, x1 इज 4, x2 इज 5 और x3 इज, जो इसमें नहीं आता है वो इट मींस दैट हैज जीरो वैल्यू, क्योंकि वो नॉन बेसिक जा रहा है, इसका मतलब x3 इज 0। ठीक है, यही तीन आपके की डिसीजन वेरिएबल्स थे। y4 y6 की वैल्यू कुछ भी हो, दैट दे डोंट हैव एनी रोल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे y6 11 है यहाँ पे, लेकिन 11 का कोई रोल नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो जीरो कॉस्ट वैल्यू होती है ना। हमें सिर्फ ये बेसिक जो तीन की डिसीजन वेरिएबल्स हैं इन्हीं की वैल्यू चाहिए। एंड z की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो z आपका जो था वो था मैक्स ऑफ z स्टार, इट वाज हाउ मच, ये था, है ना। इन्हें जीरो को हटा दो तो -x1 + 3x2 - 2x3, -x1 + 2x2 नहीं +3x2 - 2x3, इससे वैल्यू रख दीजिए जरा, -4 + 15 एंड -0। सो +11 वैल्यू हुई मैक्सिमम z स्टार की, है ना। तो मिनिमम कितना होगा, क्योंकि मिनिमम प्रॉब्लम थी 10, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ मैक्स z स्टार, सो -11। So -11 is the minimum value at x1 4, x2 5, x3 3. No, -11. This is the answer. So in this way you can solve your maximization problem into minimization problem into maximization problem. ठीक है भाई, ये पूरा एक प्रोसेस था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अगेन कि हाउ टू सॉल्व दिस। बताइए, अब क्लियर है मेथड, ये सिंपलेक्स मेथड आपको पूरा, क्यों भाई? देखो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें हमें एक आध सिलेक्ट वेरिएबल कम ऐड करने से भी काम हो सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा प्रॉब्लम में। कुछ प्रॉब्लम्स है, कैसे भी टाइम है तो एक प्रॉब्लम टेबल तो आपको बनाना सीख गए। एक प्रॉब्लम है जैसे ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये इसमें 413 104, तो हमें कभी कभी विदाउट सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल कम ऐड करने से भी काम हो सकता है। देखिए 107x1 + x2 + 2x3, there may be different type of problems subject to the constants 14x1 + x2 - 6x3 + 3x4 is equal to 7, 16x1 + x2 - 6x3 less than equal to 5, 3x1 - x2 - x3 less than equal to 0, x1 x2 x3 x4 greater than equal to 0। इस प्रॉब्लम में क्या चीज है, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे इन्होंने देखो +3x4 देके 7 दिया हुआ है और x4 यहाँ कहीं नहीं है, तो डोंट यू थिंक कि x4 जो है ये इट कैन वर्क एज अ सिलेक्ट वेरिएबल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, देखो, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, और बाकी सब जगह पर क्या है, कोएफिशिएंट इस पे 0। तो कैसे मैं ऐसे सिलेक्ट वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, Yes, sir. लेकिन Yes, sir. सिलेक्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि आइडेंटिटी 1 होना मैट्रिक्स चाहिए। तो क्या करें इसमें, अगर हम इसे रीराइट करके 3 से डिवाइड कर दें, इसे डिवाइड। है ना, यस सर। तो यही आपका बस, तो मैक्स जेड तो सही है आपके पास, क्योंकि मैक्स जेड में इसकी कॉस्ट वैल्यू ऑलरेडी 0 थी, तो यहीं से हमें आइडिया लगा कि अगर यहाँ कॉस्ट वैल्यू इसकी ऑलरेडी 0 है और यहाँ पर 0 है नहीं, तो इसी को मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो आपके पास बन जाएगा 14/3x1 + 1/3x2 - 6/3 is 2x3 + x4 = 7/3। अब ये सिलेक्ट वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आप ऐड कर दीजिए, -6x3 + y5 = 5 and 3x1 - x2 - x3 + y6 = 0। ओके, तो एक कम वेरिएबल से काम हो गया मेरे पास, लेकिन अगर यहाँ पर इसकी कुछ कॉस्ट वैल्यू होती, ध्यान रखिए, और इक्वल टू होता, तब भी मुझे फिर एक वेरिएबल ऐड करना पड़ता, चाहे इक्वलिटी क्यों ना हो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए यू नीड a variable having coefficient 1। तो अगर यहाँ पे
x4 या 5x4 होता तो फिर क्या होता, इक्वालिटी होने के बाद भी मुझे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ता, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो कंसेप्ट आगे आएगा आपका, है ना, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इसकी कॉस्ट वैल्यू 0 थी। अब आपके पास ये सिंपल वही है, n6 है और m3 है, तो आप आराम से बी अपनी मैट्रिक्स जो बनाएंगे वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 0 0 x4 के करस्पॉन्डिंग, है ना। तो आपका जो IBVFS होगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, x4, ये जो है x4 इज 7/3 एंड y5 is 5 and y6 is 0. Just a minute बेटा, ओके। ये आपके पास 3 इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएंगे, y6 is 0 and you will start constructing the table and solve it. कर सकते हैं भाई आगे तो ये प्रॉब्लम तब सेम जैसे पीछे किया था, ओके। Yes, sir. We will try. यू कैन डू इट्स नॉट टफ प्रॉब्लम, सेम है। चलिए Okay, सर, sir. अब नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे में है ना, कल थर्सडे में नहीं है, सैटरडे में आई विल कंटिन्यू अदर मेथड, बिग एम मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड, टू फेज मेथड, वेयर यू हैव टू यूज surplus variables, क्योंकि surplus